This call is now being recorded. Good morning, everyone. In today's class, I will be talking about the graphs of trigonometric functions. Uh, we are having our class almost after 4-5 days. So, quick reminder for what we already have done. Check out these questions were given to you in your homework. But I'm sure that since you were busy preparing for your UK examinations, so many of you were not able to do it. What's the method? Quick reminder. Let's say for so this was your in fact homework 10th, 11th, and 12th from your assignment. So I'll take one or two parts only. Say we need the value of sine 5 pi by 3. So this is actually how we are going to find sine 5 pi by 3. I can write this as pi plus 2 pi by 3. Divide 5 by 3. Usual method. 1 is the complete quotient. So pi plus 2 pi by 3. Now, this is pi plus something. So pi plus something. Now check this out. This is first, second, third, and fourth quadrant. And already mentioned, everyone aware, all are positive in first quadrant. Sine and its reciprocal cosecant is positive in second quadrant. Rest all are negative. In third quadrant, tan and cot is positive. And in fourth quadrant, cos and its reciprocal secant is positive. I also mentioned that if theta is in the first quadrant, pi minus theta lies in the second quadrant, pi plus theta lies in the third quadrant, and 2 pi minus theta lies in the fourth quadrant. So how I am going to now make use of this theta, pi minus theta, pi plus theta, and so on? Observe carefully. I have sine of pi plus something. So pi plus something is taking me in the third quadrant, right? And at the same time, what is sine pi plus theta? What is sine pi plus theta? Third quadrant mein sine is negative. So this is minus sine theta. So this would become minus of sine theta, which is 2 pi by 3. Further, I can write 2 pi by 3 as pi minus pi by 3. Take the LCM and check it out. What happened now? This time it is pi minus theta. Pi minus theta, right? So that is sine pi minus theta in the second quadrant, and we know in the second quadrant sine is positive. So this is only remains as sine pi by 3, and sine pi by 3 means sine 60 degree minus root 3 by 2. Your required answer. Do remember, this is not the unique method. I already have mentioned in our previous class. This is one way to find this value. Another way could be this angle can be written as this is pi plus kiya hai. You could have done 2 pi minus some angle. Or you, another method, you write this in terms of degrees. Change it into degrees and then proceed. So whichever method you think you are comfortable, you need to just use that. Consider, say, E part, tan 315 degrees. Since it is given in degrees, I will simply take this in degrees like
360 डिग्री एंड माइनस कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 45 degrees. 45 degrees and 360 minus something. 360 यहां तक आ गए एंड माइनस समथिंग. आई विल बी इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो minus tan 45 degrees your required answer. So again and again I'm repeating, and why I'm focusing on this, very important and even very useful in class 12th also. Many of your 3 and 5 marker questions will be using this as a base. तो अगर यहाँ कोई गलती हो गई कि -1 की जगह आपने +1 ले लिया, आगे का 4 नंबर एवरीथिंग विल बी रॉन्ग, रिमेंबर दैट. तो इसीलिए गिव द मैक्सिमम प्रैक्टिस टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग trigonometric values of such cases. Same way, say F part, cot of minus 15 pi by 4. Very first thing, what is cot of minus x? Minus cot x. I already have given this basic rule. This is minus of cot x. So ये हो जाएगा minus of cot 15 pi by 4. So this minus will go all around throughout. अब अंदर आप चेक करिए, I can write this as, this is 4 pi minus pi by 4. Take the LCM and check it out. You could have written this as 3 pi plus 3 pi by 4 also. LCM लेकर देख लीजिए. So choice is yours. Either use this approach or this approach. जो mind में strike कर जाए. That is important. Now, what is the meaning of this? यहाँ देखिए ये 4 pi है. Of course, this is the even multiple of pi by 2. Even multiple आ गया of pi by 2. तो क्या बताया था रूल? If it is even multiple of pi by 2, cot का cot ही रहेगा. But which quadrant is this angle? Main angle मेरा किस quadrant में है? Check it out. 4 पाई का मतलब क्या हो गया? ये 2 पाई, फिर 4 पाई और 4 पाई माइनस पाई बाय 4. थोड़ा सा वापस आ गए पीछे की तरफ. माइनस करने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन. आई एम इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? ठीक है केशव. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहां कॉट नेगेटिव होता है. क्वेश्चन मेरा कॉट का था ना, तो कॉट नेगेटिव होता है. सो माइनस ऑफ कॉट पाई बाय 4 and this is equal to minus of minus 1. 1 as your required answer. Yes, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर. In a similar way, you can check out and try out all remaining parts. But give the ample practice to such type of questions. Another type of a question what we have already discussed in your first exercise. आपके पास secant x दिया हुआ है और x lies in 3 pi by 2 to 2 pi. Can anyone tell me what is the meaning of this? Which quadrant x lies? In other words, I am saying x lies in, x belongs to... Sir, third quadrant. Yes. Check it out. 3 pi by 4, oh sorry, 3 pi by 2 से. So 3 pi by 2 से 2 pi तक, it is the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है.
270 डिग्रीज हो गया ना ये बेसिकली, अगर आप सिंपल अगर सोचना चाहें तो 360 तक जा रहे कहां से, 270 डिग्रीज से। तो x इज फ्रॉम 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। 270 कहाँ था, ये आ गए हम यहाँ 270। एक मिनट, 2 3 पाई बाय 4 2 से है भाई। दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अभी किसी ने थर्ड बोला था, आई रॉट दैट। सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक दिस आउट, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं यहां बता रहा हूं ये डायग्राम में, ये 90 डिग्री था, ये 180 था, फिर आगे आ गए 270। अब मुझे कहां से देखना है, 270 से लेकर 360, तो ये वाली मूवमेंट होगी। सो 270 से 360 रेफर टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिए कॉस इज किंग, कहते हैं ना, वो याद रखा हुआ है ASTC। तो cos is positive and it's reciprocal, they are positive only, rest all will be negative. So that simply means, ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देखिए आपको secant x दिया हुआ है √2, तो ये हमें पता ही था कि वैसे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए था। इसका रेसिप्रोकल करा, cos x आ गया 1/√2, and then using the basic formulas आप tan x और secant x की वैल्यू वगैरह निकाल लेंगे, राइट। तो अब आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, हमें पता है 1 + tan square x इज secant square x एंड सो ऑन। वैल्यू पुट कर दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ tan x विद प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में यू विल चूज द नेगेटिव वैल्यू ओनली फॉर tan, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट आ जाएगा एंड सो ऑन। Get all the values, required values for this expression and substitute, you will have your required answer. Everyone mark your attendance in a chat box. I'm using a different layout, you can all see. Everyone quickly write down present in the chat box. Now we are starting with the graphs of trigonometric functions. Recall in the chapter number 2, relations and functions, we did talk about the graphs of various functions like modulus function, like signum functions, and say parabolic, your quadratic polynomials. Now trigonometric functions and their graphs. Consider y equal to sin x. How we are going to graph this function? Sin x is a periodic function with period 2 pi. Means after every interval of 2 pi, the value of sine will get repeated. That means whatever is the graph of this function from 0 to 2 pi, same graph will be copied in the interval 2 pi to 4 pi, 4 pi to 6 pi, and so on. Even the angle can be negative. So the same graph will be copied in the interval -2 pi, comma 0, -4 pi, comma -2 pi, and so on. So that's a basic idea. But initially from 0 to 2 pi, we do not know the many of the values. So what we will do? We will consider few of the non-values initially. 0, sin 0 is 0. Sin pi by 6 माने sin 30 डिग्री, पता है हमें 1/2 which is 0.5.
Similarly, check out at pi by 3. Sine pi by 3, root 3 by 2. This is approximately 0.87. साइन पाई बाय 4 यहां लिखना रह गया है, तो साइन पाई बाय 4 आपको पता है 1 बाय रूट 2 हो जाता है, एंड दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.77. फिर साइन पाई बाय 2 हमें पता है 1 होता है. तो इफ आई इनिशियली फोकस ऑन दीज वैल्यूज जो हमने 10th में ही पढ़ा हुआ था, these values, right? And if I now try to graph it, तो मैंने एक वैल्यू बता दी पाई बाय 4 के ऊपर 1 बाय रूट 2, which is approximately 0.7. So imagine a situation 0, this is pi by 2, and let me plot these values and say this is the line of 1, और ये हो जाएगा 0.5. So 0, 0 will of course refer to this value. Next, pi by 6 माने 30 डिग्री एंड 0.5. तो 30 डिग्री सोच के देखिए, कहीं यहां पर होगा, फिर कहीं रहा होगा पाई बाय 4 एंड सो ऑन. तो पाई बाय 4 तो वैसे मिड वैल्यू आएगा इसका, तो पाई बाय 6 के ऊपर इट इज 0.5, फिर पाई बाय 4 के ऊपर 0.7, पाई बाय 3 कहीं यहां आएगा जिसके ऊपर पाई बाय 0.87 है, और फिर पाई बाय 2 के ऊपर आप आंसर देखिए एग्जैक्टली 1 के इक्वल है. तो एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि आई हैव दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, join these points, but do remember when you join it will be a curve shape, it is not a straight line. Why? There are infinitely many angles between 0 to 90 degree, but practically it is not possible to consider all those angles and draw the graph. But if it could have been possible, and if I have plotted the values, what will happen? At say 1 degree, answer will be this. At say then 2 degrees, kahin yahan aayega, and so on. So when I join all the points together, I will get a smooth curve like this. So this is the graph of sin x between 0 to pi by 2, means in first quadrant. अब इसके आगे थोड़ा सोचना शुरू करते हैं. चेक आउट दीज 3 वैल्यूज. 2 पाई बाय 3 120 डिग्रीज होता है, ऐसे ही 5 पाई बाय 6 300 डिग्रीज हो जाएगा. पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्रीज. ओ सॉरी, ये 30 डिग्रीज है तो 150 हो जाएगा, 150 डिग्रीज हो जाएगा, और पाई तो ऑब्वियसली 180 डिग्री. तो अगर आप इन वैल्यूज के ऊपर चेक करते हैं और इन्हें प्लॉट करते हैं, तो व्हाट विल यू फाइंड कि पाई बाय 2 से पाई तक आने में वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी. द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट यू कैन ऑब्जर्व. 0.87 था फर्स्ट वैल्यू, देन इट डिक्रीजेस 0.5, then it decreases more and take the value as 0. We already have learned how to find the value of sine 2 pi by 3, sine 5 pi by 6, and so on. So I'm making use of that as well. Further, अब हम फोकस करते हैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो फिर मान लो मैंने इन वैल्यूज पे फोकस कर लिया. इन वैल्यूज को अगर आप इन एंगल्स को कैलकुलेट कर लीजिए इन से डिग्रीज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वैल्यू आप चेक करिए, डिक्रीज होती जा रही है, कम होते होते इट विल बिकमिंग -1. तो वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन लाइक समथिंग लाइक दिस, और नीचे तक आ जाएगा. एंड सिमिलरली और ज्यादा डिक्रीज होगा. ऐसे करते करते फिर हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में. Ultimately you will have the graph of sin x like this. You do not need to learn the values actually
कि किन किन को हमने लिया है. अल्टीमेट आइडिया इज based on the understanding how you get this particular graph. तो आप चेक करिए, लास्ट पेज पर मैं 0 से पाई तक आपको शो कर चुका हूं. 0 से इफ आई लुक एट द ग्राफ फ्रॉम 0 टू पाई, तो ग्राफ देखो ये आ रहा है, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये आ रहा है 0 से पाई तक. अब चेक करिए यहां, तो 0 से पाई तक के बीच में यू कैन चेक इट आउट, ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया. सिमिलरली और वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग भी कैसे हो रहा है, ये पाई से ये वैल्यू देखो, और नीचे की तरफ देखो, हाईलाइट कर रहा हूं, नीचे जा रही है. कहां तक, -1 तक जा रही है, और फिर यहां से इंक्रीज हुई अप टू 1 तक, और फिर यहां 0 तक आ गई. 1 नहीं, सॉरी, 0 तक आ गई. तो sin 2 pi is 0. Looking at the graph, everyone look at the graph and answer quick question. What is the value of sin pi by 2 from the graph? अगर मैं ग्राफ को देखकर बताना चाहूं, sin pi by 2, ये देखो, ये रहा pi by 2, 1. यस, पाई बाय 2 के ऊपर ये किया, और ये वैल्यू अगर आप यहां लेकर आए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो पाई बाय 2 कॉमा 1 हो जाएगा. सो द वैल्यू इज 1. यहां x है, यहां वैल्यूज हैं y की. सिमिलरली व्हाट इज साइन 3 पाई बाय 2, -1. ये चेक करिए, 3 पाई बाय 2 पे ये वैल्यू हुई है, एंड इट रेफर टू -1. तो साइन 3 पाई बाय 2 इज -1. सिमिलरली यू कैन चेक आउट से साइन 2 पाई इज 0, साइन 0 0, एंड सो ऑन. ये तो 0 से 2 पाई तक के बीच में ग्राफ दिखाया है. तो इसी ग्राफ को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, ये रहा से 0 से 2 पाई तक के बीच में ग्राफ. एंड एज ऑलरेडी मेंशन्ड, sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इस पीरियड इज 2 पाई. उसका मतलब अब आपका ग्राफ जो है वो 2 पाई से 4 पाई तक, 2 पाई से 4 पाई तक भी सेम शेप होगी. इवन इन नेगेटिव डायरेक्शन देखिए, -2 पाई से 0 तक, it will be again the same shape, and so on. For a better understanding, I am now using one software. It's a open website, desmos.com. Check out in the Omnibox. Address bar जो आपका है, you can try out at your place. Homework में आप check कर सकते हैं. Simply desmos.com. तो अब इसमें चेक इट आउट, मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा है. सो आई ऑलरेडी हैव रिटन साइन एक्स. चलो मैं स्टार्टिंग से करता हूं. से आई जस्ट राइट साइन एक्स. तो सिंपल सिंटैक्स है टू अंडरस्टैंड. साइन एक्स ब्रैकेट में लिख दिया, यू चेक आउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ये इसी तरह का हमें ग्राफ दिखाई दिया था. तो पहले मैं फोकस करता हूं 0 से 2 पाई के लिए. तो चेक इट आउट, 0 से 2 पाई में इफ आई लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, वो आपके सामने ही है. तो बड़ा स्मूथ ग्राफ आपका बनकर आया है. एंड दिस इज 0, दिस इज योर 2 पाई. एक मिनट, पहले मैं रिमूव कर दूं सारा. यस, सो 0 से लेकर ये पाई, और फिर यहां 2 पाई. तो 0 से 2 पाई में क्विक अंडरस्टैंडिंग, यहां 1 है, यहां -1 है. ग्राफ मेरा लाइक कर रहा है -1 से 1 के बीच में ही. तो ये ग्राफ उठा ऐसे अप टू पाई बाय 2, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, फिर नीचे आया साइन पाई 0, फिर वैल्यू इसकी और कम हो रही है, बट
कहां तक जा सकती है? -1 तक, फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, बट कहां तक आएगी? अप टू 0. So 0 to 2 pi, this is the graph of this function. Sir, it is because the value of sin x can be ranged from -1 to 1 now. Yes, that is what we are observing in the graph itself. The value is lying between -1 to 1 only. आप चेक करिए ग्राफ मेरा, ये जो अब मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं -1 से 1 की, इन्हीं के बीच में लाई करने वाला है. So this simply implies that my graph is bound between -1 to 1, और in simple word, अगर मैं इस फंक्शन के रेंज की बात करता, रेंज मतलब व्हाट वैल्यूज योर आंसर कैन टेक? -1 to 1. -1 to 1. सिमिलरली डोमेन क्या होगा? चलिए, Real number. डोमेन का Real मतलब numbers. वैल्यूज x कैन टेक एनी एंगल. आप साइन ऑफ 100 डिग्री की बात कर सकते हैं, -1000 डिग्री की बात कर सकते हैं. तो दैट इज एनी रियल एंगल. Answer value of n pi by 2 is constant. Sin n pi by 2. Yes, Yes. sir. Sin n pi is always 0. Sin of n pi is always equal to 0. Sin 0, sin pi, sin 2 pi, sin 4 pi, and so on. They all are 0. अब जरा चेक इट आउट. sin x मैंने ये दिखा दिया. एक बार जरा पहले क्विकली चेक करिए ग्राफ ऑफ cos x, और अब मैं क्विकली चलूंगा और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू समझेंगे. cos x वेरी सिमिलर टू sin x ओनली. पीरियड इसका भी 2 पाई है. 2 पाई के बाद वैल्यू गोज ऑन रिपीटिंग. फ्यू वैल्यूज आर कंसिडर्ड. इनिशियली हमने लिया है इसे समझने के लिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको ये टेबल याद नहीं करनी है, और एग्जाम में भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड? द एग्जैक्ट दिस थिंग. तो शेप ऑफ द ग्राफ शुड बी क्लियर टू यू. अब मेरे पास cos x के अगर मैं ग्राफ की बात करूं, एक सिर्फ ना स्टार्टिंग के आप इन चीजों पे फोकस करिए. ये 0 से π/2 वैल्यूज क्या हो रही हैं? 1. फिर नेक्स्ट है 0.87. ये π/4 लिखा नहीं है, उस पे आती है 0.7. तो 0.7, फिर आई 0.5, और फिर आई 0. ऑब्जर्व दैट वैल्यूज आर डिक्रीजिंग. 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रही हैं cos x की वैल्यू. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अब आप ग्राफ को ध्यान से नोटिस करें, cos 0 1 था, ये रहा. देन वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग. करते करते हमने देखा था sin π/2 आ गया था 0. एंड इफ वी कंटिन्यू ग्राफिंग दिस, फिर sin π/2 के बाद वैल्यू फिर कम होती हैं. कहां तक? sin π तक, विच इज -1. -1 पे आने के बाद वैल्यूज थोड़ी इंक्रीज हो रही हैं, लाइक दिस. sin 3 π/2 0, और फिर sin 2 पाई. 2 पाई के ऊपर आंसर आ जाता है 1 के. सो दिस आई यूजुअली से दिस इज योर कंप्लीट वन साइकिल. वन कंप्लीट साइकिल का मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पार्ट हुआ है. तो उस 1/4 का मतलब हम कैसे, देखो इसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं. फर्स्ट 1/4 किसको रेफर करेगा? फर्स्ट 1/4 लेट से ये 0 से आ गए यहां π/2. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1/4 क्या होगा? π/2 से लेकर पाई तक का ग्राफ. उसके बाद नेक्स्ट 1/4 पोर्शन क्या होगा? पाई से लेकर 3 π/2 तक का ग्राफ. एंड फाइनली नेक्स्ट 1/4 क्या होगा? π/2 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ. तो ये जिस तरह से डिफरेंशिएट मैंने किया है कलर्स को यूज करके, दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. 0 से 2 पाई तक
4 इंटरवल्स मैंने कंसिडर कर लिए π/2 के इंटरवल के गैप के बाद, और उनमें जब आपने ग्राफ को बनाया तो cos x का ग्राफ विल बी समहाउ लुक लाइक दिस. एंड एज मेंशन्ड अर्लियर, हम जो बात कर रहे हैं इनिशियली सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं, मैंने बनाया से 0 से ग्राफ लिया था 2π तक. तो ये ग्राफ, ये थोड़ा सा नीचे गलत दिखा दिया, थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि ये लाइन सेम जाती है ऐसे, राइट. तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाएगा एंड लाइक दिस. तो 0 से 2π तक के बीच में ये ग्राफ आ गया आपका cos x का. लर्न दिस शेप. और फिर इसके बाद बता दिया है कि हर 2π के इंटरवल के अंदर ग्राफ की शेप विल स्टार्ट रिपीटिंग. सेम शेप आ जाएगी आपकी 2π के इंटरवल्स में. लेट मी नाउ ग्राफ cos x. ये आप सॉफ्टवेयर से देखिए, हार्डली 1 सेकेंड एंड आई हैव द ग्राफ ऑफ cos x. So as mentioned initially, let me focus from 0 to 2π. तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर. एक मिनट. cos x का ग्राफ है ना हम, यस. तो 0 से लेकर 2π, सबसे पहले ये देखिए 0 से लेकर आपका ये आ गया 2π यहां, और इसके बीच में आपने ग्राफ को नोटिस किया. ये ग्राफ 0 cos 0 1 होता है. तो ये पहली वैल्यू अच्छे से याद रखिए कि cos 0 1 होता है. तो 0, 1 प्लॉट कर दिया. फिर मुझे पता है cos π/2 0 होता है, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया. फिर cos π -1 होता है, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया. और फिर cos 3π/2 इज 0, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया. एंड cos 2π इज अगेन 0. सॉरी, cos 2π इज 1. फिर ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया. अगर ये आपने इतनी सी वैल्यूज को भी अपना समझ लिया और याद रख लिया, आप चेक करिए, अब आप इजीली यहाँ पर ये ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं जो बनाकर अभी दिखाया है. तो ये वाला ग्राफ देखिए आपका यही आ गया ना. इन पॉइंट्स को एक आइडिया लग रहा है कि एक तो जाना स्मूथ कर्व है लाइक दिस. तो पेंसिल से ही आप ये स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देंगे एंड आई विल गेट द ग्राफ ऑफ cos x. Next, let me consider quickly the graph of tan x. tan x में क्या होता है? tan x एक तो डिफाइन नहीं होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर. tan π/2 इन्फिनिटी कहते हैं ना, इट इज नॉट डिफाइंड. तो tan π/2 इज नॉट डिफाइंड. इसी तरह से tan -π/2 वो भी नॉट डिफाइन है. और tan की वैल्यूज विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई. तो tan का पीरियड जो हम कहते हैं वो पाई होता है. साइन और कॉस का 2π था. और tan के ग्राफ में लॉजिक की थोड़ी सी बात करेंगे. अगर मैं ग्राफ देखूं 0 से पाई में, तो 0 से π/2 तक में वैल्यूज इसकी इंक्रीज हो रही होती हैं 0 टू इंफिनिटी. और π/2 से पाई में वैल्यूज स्टार्ट डिक्रीजिंग. किस तरह से? कम्स टू 0. समझने के लिए इस टेबल को चेक करिए. फ्यू वैल्यूज ऑफ tan आर टेकन. यस, एवरी ऑड मल्टीपल. यस, यू आर राइट. तो 3π/2 के ऊपर भी मेरा tan इज नॉट डिफाइंड. 5π/2 के ऊपर भी tan फंक्शन इज नॉट डिफाइंड.
तो नॉट डिफाइंड के लिए क्या करेंगे ग्राफ में, दैट आई विल शो। तो कुछ वैल्यूज आपको ऑलरेडी याद हैं, tan 0 0, tan π/6 सोचिए 1/√3 होता है, 1/√3 को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया 0.58। यू डोंट नीड टू लर्न दिस वैल्यूज, जस्ट एक आइडिया लेना है। tan π/4 tan 45 डिग्री 1 हो गया, tan 60 डिग्री आता है 1.73, और एकदम से सोचिए 60 से 90 डिग्री तक आने में वैल्यू एकदम से 1.73 से इंफिनिटी पहुंच रही है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट केयरफुली। एंड व्हेन वी ग्राफ दिस फंक्शन, आप चेक करिए, अभी मैंने सिर्फ बात करी थी 0 से π/2, ये रहा 0 और ये रहा π/2। तो फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली। कौन से पार्ट में फोकस? सिर्फ और सिर्फ एवरीवन अभी इस फिलहाल के लिए यहां देखिए, ये इस पोर्शन के बीच में आपका फोकस है। आई विल रब दिस येलो कलर ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बट इस पोर्शन में आपको फोकस करना है। और अब इस यहां पर अब आप चेक करिए, अगर मैंने कुछ वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, tan π/6 हम चेक कर चुके हैं, यहां कोई वैल्यू आई थी, tan π/4 एग्जैक्टली 1 के इक्वल था, tan π/3 1.73 रफली रहा था ये वैल्यू, और π/2 पे इंफिनिटी के लिए तो मैं यहां दिखा नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हेयर। सो दिस इज अ डॉटेड लाइन हेयर। जहां आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, आप वहां डॉटेड लाइन यूज करेंगे। एंड कौन सा ग्राफ अभी तक हमें मिला है? 0 से π/2 के बीच में। चेक आउट दिस शेप, ये और ये लाइन जो ऊपर जा रही है, ये याद रखिए, ये लाइन कभी भी इस लाइन के साथ ना ही मीट कर रही है, मींस नॉट नीदर इंटरसेक्टिंग नीदर पैरेलल। देखने में लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चलो मीट करेगी या पैरेलल हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही पैरेलल है, ना ही कभी भी मीट करेगी। यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर and x, and here is the graph. Check this out. थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, तब आपको और बेटर आइडिया लगेगा। पहले चलिए ऐसे देख लेते हैं। ये मेरा tan का ग्राफ आया था। अब 0 से π/2 में सिर्फ प्लीज फोकस करिए। इनिशियली 0 से π/2 में ऑब्जर्व दैट π/2 की ग्राफ में एक प्रॉब्लम क्या होती है सॉफ्टवेयर में, यहाँ ना डॉटेड लाइन ये ग्राफ नहीं दिखा पाता, तो इसको बग कहिए या कुछ प्रॉब्लम कि वो यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको एज्यूम क्या करना है, बस एक चीज जो मिसिंग है यहाँ पर एक तरह से, कि π/2 के ऊपर वेयर इज यस, यहाँ ये डॉटेड लाइन है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन द एनी ऑफ द ग्राफिकल प्रोग्राम। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये सिर्फ एक इश्यू रहता है। तो ये π/2 के ऊपर इट इज द डॉटेड लाइन, -π/2 के ऊपर अगेन इट इज द डॉटेड लाइन लाइक दिस। तो अगर अब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, कंप्लीट -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 के बीच में। इफ यू कंसिडर द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, तो आप चेक करिए ग्राफ कुछ ऐसा बनकर आ रही है, ये वाली शेप, ये जो मैं ऊपर से ये नीचे ला रहा हूं लाइक दिस, एंड फिर ये नीचे आते रहेगा लाइक दिस। सो दिस इज वन इंटरवल। -π/2 से मैंने π/2 का ले लिया विद ओपन ब्रैकेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन ब्रैकेट क्यों लिया?
क्योंकि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो कंसीडर द ग्राफ इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और वो अगर अब आप यहाँ पर शेप को ध्यान से देखें तो वो ये वाली आ जाती है। तो सर आप, ये नॉट डिफाइंड नेगेटिव में जा रहा है सर। yes, exactly, whatever is happening in positive, same it is in the negative direction. नॉट डिफाइंड, tan माइनस पाई बाय 2 पर भी डॉटेड लाइन आएगी एंड इट इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिक आइडिया, आपको सिर्फ पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का ग्राफ की शेप को याद रखना है। इस शेप को अगर आपने याद रख लिया, डेफिनेटली बाकी पोर्शंस में आप ग्राफ इजीली इमेजिन कर पाएंगे। सो चेक इट आउट, इस तरह से एक्चुअल ग्राफ होता है। तो हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की ग्राफ को चलो प्लॉट कर लेते हैं, बट मेनली जितना मैं इसको कंप्रेस करके दिखाऊंगा तो इस तरह से tan x का ग्राफ आ जाता है। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस and there is a break for 3 minutes. Mark your attendance and we'll meet after 3 minutes, 4 minutes. Do not leave the class. Quickly mark your present, absent. Absent तो क्या मार्क करोगे, प्रेजेंट ही कर सकते हो। We'll continue after 4 minutes.
Yes. Let's continue. So I'm mentioning about this software. आप ये नाम लिख लीजिए, Desmos, and इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है. Just need to check out in your Play Store, Desmos. So we already have learned about the graph of sine, cos, and tan, and now about their reciprocals, secant, cosecant, and cot x. We just need to know their domain and range. Even graphs of these functions will not be asked in the examination. तो ग्राफ आपको सिर्फ साइन कॉस टैन के आएंगे एग्जाम में. ये वाले ग्राफ जस्ट फॉर योर नॉलेज हैं. बट ऑब्जर्व दैट इफ यू लुक केयरफुली एट द ग्राफ, कैन एनीवन टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सीकेंट एक्स की मैं बात कर रहा हूँ. डोमेन R minus Real number except Sir, R odd multiple minus- of pi by 2. minus Yes, 1 good. comma 1. Minus x, where x is say odd. the, Odd multiple of pi by 2. yes, ये pi by 2, 3 pi by 2 and so on. So it is the 2n plus 1 into pi by 2, and where n is integer. This is actually exact domain of this function. जहाँ जहाँ ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जहाँ जहाँ मैंने ये डॉटेड लाइन दिखा दिया है, तो डॉटेड लाइन आपकी पाई बाय 2 पर जा रही थी, 3 पाई बाय 2, फिर माइनस पाई बाय 2. तो क्लियर है कि यहाँ मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. रेंज क्या है इस फंक्शन की? ब्लू ग्राफ को नोटिस करिए. Real number except minus 1 to 1. गुड. नोट केयरफुली. -1 से 1 के बीच में आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. -1 से 1 के बीच में, इस पोर्शन को छोड़कर ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर आपको ग्राफ रीड करना आ गया, बिलीव मी, लॉट मेनी थिंग्स आर ऑटोमेटिकली देन क्लियर. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है कि मैंने ये डोमेन और रेंज कैसे लिखा होगा, और अगर आपको डोमेन रेंज याद रह गया तब मोस्ट लाइकली यू कैन ग्राफ द फंक्शंस आल्सो. Similarly, cosecant and cot, I will give this in your homework. और साथ में अब हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू. इनिशियली लेट्स से 1 by sin x. चेक इट आउट. मैंने cosecant का ग्राफ सबसे पहले बनाया है, तो ग्राफ आपके सामने ही है. और अगर अब मैं इसी के साथ इंटरेस्टिंग चीज एक दिखाऊं और sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, note the what important thing you observe here. Anyone? जहां साइन एग्जिस्ट करेगा वहां कॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जहां कोसिकेंट एग्जिस्ट करेगा वहां आपका साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सर लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना. हाँ, वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, राइट. बट माइनस, क्योंकि वो उनके क्लोज इंटरवल है ना, -1 से 1 जो हमने कंसीडर करा है, इसीलिए यहाँ पर क्लोज वाली वैल्यू आ जाती है. अगर मैं इस किसका मैंने बनाया, कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ -1 हो रही है, ऊपर 1 हो रही है. सो दैट ऑफ कोर्स वी नीड टू रिमेंबर. इसी तरह से चलिए अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूं. से 1 by cos x. नोट केयरफुली, ये cos x का ग्राफ है, 1 by cos का है. और cos x का ग्राफ अगर मैं बना दूं यहाँ, यू कैन इजीली हैव द सिमिलर ऑब्जर्वेशन. इनफैक्ट जहां cos मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, थिंक लॉजिकली, वो इसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू है. और जहां cos मिनिमम है, ये वाला ग्राफ है cos का, जहां cos मिनिमम है -1, वो इसके रेसिप्रोकल की
एक तरह से सोच के देखिए क्या हो रही है, उसकी मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। ये इस तरह से ग्राफ एक्चुअल में जा रहे हैं। तो दिस फंडामेंटल आइडिया शुड बी क्लियर टू यू। और अब थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज देखते हैं। आई ऑलरेडी हैव सर लर्न। वन वैल्यू इसलिए कोइंसाइड कर रही है ना क्योंकि उसका जो रेसिप्रोकल है वो सेम होएगा। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली ट्रू। Check out the graph of sine of 2x. sin x का तो हमने देख लिया था। अब एक बार जरा चेक करें, ये सॉफ्टवेयर से मैंने हेल्प से बना दिया, चलिए डायरेक्ट बना दिया sin 2x का ग्राफ। लेट मी ग्राफ sin x साइमल्टेनियसली, राइट। और अब आप ध्यान से देखें, sin x को भी बना दिया यहां पर, और दूसरा sin 2x। व्हाट डू यू नोट? पहले फोकस करिए आप साइन एक्स के ग्राफ पर। साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई तक, ये माउस को ध्यान से देखते रहिए, ये जैसे मैं घुमा रहा हूं, 0 से 2 पाई तक इसकी एक कंप्लीट साइकिल हुई थी। बट अगर अब मैं कंसीडर करूं ग्राफ ऑफ साइन 2x, इसकी साइकिल कहां से कहां तक कंप्लीट हो रही है, सोच के देखिए। वन कंप्लीट साइकिल सर 0 to पाई। 0 to पाई, वो कंप्लीट मैंने बताया था ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो साइन की जो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गई, अब साइन 2x की वो पाई के इंटरवल में हो जाती है। तो इसका पीरियड जो है वो पाई हो गया। इवन अगर हम मान लो मैं ले लेता हूं साइन ऑफ से 4x, अब क्या हुआ, नोट केयरफुली, पाई/2 तक कंप्लीट हो गया इसका पूरा कंप्लीट ग्राफ, इजंट इट? 0 से पाई/2 में ही कंप्लीट साइकिल पूरी हो चुकी है। नोट केयरफुली हेयर, 0 से पाई/2 में ही हो गई साइन 4x का ग्राफ। और अगर मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लिख कर दूं, वो क्या, 2 पाई/a, this is the actually period of the function sin ax। ऊपर वाले फर्स्ट केस में a is 1, तो आप 1 रखना एक ही जगह, 2 पाई आ गया इसका पीरियड, यस पीरियड सर। 2 पाई। अब जरा दूसरे केस में मैंने a को क्या लिया है, 2, एक ही जगह 2 रखना, आ गया इसका पीरियड इज पाई, यही हमने नोट किया था। और अब जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, इस केस में मैंने a को क्या लिया है, 4, तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/4, दैट इज पाई/2। यही तो हमने यहां नोट करा कि मेरा पूरा का पूरा ग्राफ कंप्रेस हो गया 0 से पाई/2 तक के बीच में। सेम वे वी डिफाइन द पीरियड फॉर cos ax, सेम फॉर्मूला होता है cos ax का भी, 2 पाई/a। बट अगर मैं tan की बात करूं तो tan का पीरियड हो जाता है, इसका पीरियड क्या है, पाई/a, क्योंकि tan की वैल्यू पाई के इंटरवल के बाद गेट स्टार्टेड रिपीटिंग। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इवन चलिए अब मैं लेता हूं से ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स, एनी गेस वर्क क्या होगा, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड सर।
Sir, all the values will become negative. Sir, minus 2 pi. The idea is this. चेक करो कब क्लियर होगा, जब मैं साइन का ग्राफ दिखाऊंगा. ये रहा साइन का ग्राफ रेड कलर से. तो आप इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज ले लो. ग्रीन कलर का ग्राफ जो है वो साइन एक्स का है. इमेजिन, क्या इमेजिन करो कि एक्स एक्सिस के ऊपर यहां मैंने मिरर रख दिया. ये मिरर है और इसका रिफ्लेक्शन देखो. रिफ्लेक्शन देखना जरा. मैं पहले देखता हूं 0 से पाई में. डोंट यू थिंक सो 0 से पाई में रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा. सेम वे रिफ्लेक्शन आगे ऐसे आएगा एंड सो ऑन. और अब मैं जरा रियल ग्राफ दिखा देता हूं आपको. चेक दिस आउट. दिस इज व्हाट वी थॉट एंड एक्सपेक्टेड. माइनस साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया. इवन अब अगर मान लो मुझे बात करनी होती माइनस ऑफ साइन 2x का ग्राफ, ये रहा. वो साइन 2x के ग्राफ का इस तरह से इनवर्स मिरर इमेज आ जाएगा. इवन अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना था से 2 साइन एक्स का. कैन एनीवन टेल मी क्या फर्क पड़ेगा? 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? Play with Desmos. Very interesting learning would be there. Check this Sir, out. it will increase to 2, minus 2. Minus 2, 2. Good. Check it out. ये रहा आपके सामने ग्राफ. Check this out. ये sin x का ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला. ये कलर लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं ना, कौन सा किसका है. तो ग्रीन कलर का ग्राफ बिल्कुल सिमिलर शेप जा रही है. बट जो ग्राफ मेरा ग्रीन वाला -1 से 1 के बीच में था, -1 से 1 के बीच में, साइन 2 साइन एक्स सिमिलर शेप, पीरियड वही रहेगा, बट वो ग्राफ आ जाएगा -2 से 2 के बीच में. यहां पहले इससे माइनस लगा दूं, देखिए फर्क क्या पड़ रहा है. तो दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशंस. 2 की जगह मान लो मैंने यहां पर कर दिया 3. नोट द चेंज. ग्राफ मान लो मैंने सोचा 3 साइन 2x का. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 साइन 2x. 2x के ग्राफ को एक तरह से 3 टाइम्स मैंने ऊपर और नीचे खींच दिया है. तो इफ द आइडिया इज क्लियर विथ से द ग्राफ ऑफ साइन x. अब अगर मान लो मैं cos x से स्टार्ट करता, तो ये हमें पता ही है cos x का ग्राफ. और अब मान लीजिए मैं लेता हूं माइनस ऑफ cos x. यू हैव द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ cos x से cos ऑफ 3x. चेक इट आउट. cos ऑफ 3x, इसका पीरियड हो जाएगा 2π/3. 2π/a था ना, तो 2π/3 के इंटरवल के बाद आपका ये वाला ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. चेक करिए, ये रहा ना 2π/3 के ऊपर 1 है वैल्यू. तो ऑल द पॉइंट्स आर क्विकली प्लॉटेड बाय द ग्राफ सॉफ्टवेयर. हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पे फोकस करना है. मान लीजिए मैं ग्राफ लेता हूं cos ऑफ 4x का. ये रहा आपके सामने. मान लीजिए मैं ग्राफ लेता हूं से 1 cos x लिया और इस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूं से 2 से. नोट द चेंज. सो दैट आर द थिंग्स जो अब आपको अपने आप इमेजिन करना है. इवन मान लीजिए अब मैं आता हूं वापस अपने सिंपल फंक्शंस के ऊपर. ट्रिग्नोमेट्री तो चलो अभी थोड़ा बता दिया. क्विकली चेक आउट.
एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये यहाँ रेडियंस को मैं चेंज कर देता हूँ एक बार। यस, सो चेक इट आउट। एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स क्यूब का ग्राफ, ये रहा एक्स पावर 4 का ग्राफ। ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर का ग्राफ रेड कलर का है, एक्स पावर 4 का ग्रीन कलर का है। अब अगर मैं एक्स पावर 6 का ग्राफ बना दूं, सोच के देखिए रिलेशनशिप इनके बीच में क्या हो रहा है। ग्राफ गोज ऑन कंप्रेसिंग, कंप्रेस होते जा रहा है। तो एक्स पावर 8 का ग्राफ और ज्यादा कंप्रेशन में आ जाएगा। तो वो चलो इतना यहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें एक्स क्यूब तक ही जाना होता है। लेट्स से आई कंसीडर द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चेक इट आउट, 2 और 3 के ऊपर ये इंटरसेक्ट करता है ग्राफ एंड द शेप इज द पैराबोला। लेट्स से मुझे ग्राफ करना है रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x। चेक इट आउट, ऑलरेडी हम इस तरह का ग्राफ की शेप की बात कर चुके हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। इवन अगर मुझे मान लीजिए 1/x स्क्वायर सोचना होता, 1/x स्क्वायर, तो जनरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ सच ग्राफ्स कि ये ऐसे बनकर आने वाला है। बट इफ द आइडिया इज क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, चलिए ये चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ देखिए ऐसा होगा। इन आईबी करिकुलम और फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन स्कूल्स में, वहां पर वो सारी टीचिंग है वो ग्राफ्स के थ्रू होती हैं। तो वहाँ एक्चुअली लैपटॉप एंड एवरीथिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन, तो वो इसके थ्रू सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया। ये ग्राफ इस तरह के आपको बनाने को नहीं आएंगे, बट एक्सप्लोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बट मोर यू कैन लर्न अबाउट दिस। ऐसे ही हम स्टडी करेंगे आगे जो फर्दर आने वाले हैं आपके मॉडुलस फंक्शन का। चलो हम ग्राफ बात कर चुके हैं। आई नीड टू चेक आउट कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। अब मॉड होता है या नहीं होता, नो, दैट सिंटेक्स इफ इट इज ओके नॉन टू मी देन ओनली आई कैन ग्राफ इट। क्योंकि हर प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हर एक के सिंटेक्स अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन का सिंटेक्स अगर मॉड नहीं है तो इट मे बी सर जेड, नहीं, जेड तो नहीं होता है। दैट आई नीड टू चेक आउट। और वरना यहाँ मैं सर्च में जाऊंगा तो यहाँ वो गेटिंग स्टार्टेड या कुछ हेल्प सेंटर में दे विल प्रोवाइड मी यूजर गाइड के अंदर एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। तो जैसे मैंने इसकी यूजर गाइड को डाउनलोड कर लिया है। वी वर टॉकिंग अबाउट विच फंक्शन, मॉडुलस। मॉडुलस, यस सर, यस, ओके, ये मॉडुलस नाम से ये नहीं ले रहा है। सो दिस इज एवरीथिंग कि क्या क्या आपको किस तरह से प्लॉट करना है, क्या कर सकते हैं। दैट वे आई हैव द हेल्प फाइल फॉर द सिम। आई चेक आउट के इसमें किस तरह के, ये देखिए ग्राफ, इस तरह के ग्राफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज को हम स्टडी करते हैं। ये पोलर ग्राफ होते हैं, पीस वाइज फंक्शन, ग्राफ को देखकर डोमेन रेंज को बताना। So everything can be learned using this only. टेबल वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। a sin x के ग्राफ कैसे हम बात कर सकते हैं, I'll go through this। और फिर मैं स्पेसिफिकली कि जो थोड़े से, हाँ यहाँ इन्होंने एक्सप्रेशन का कुछ अगर बताया है, लॉग ऐसे लिखते हैं, ओके, LCM ये यहाँ मिलेगा, मॉड फ्लोर राउंड एब्सोल्यूट, ABS what is ABS? ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हम ढूंढ रहे थे,
ये रहा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, याद करिए ये होता है। अब मान लो मैं इसमें -2 कर देता, आइडिया क्लियर है, बताया था आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मैं -2 की जगह +3 कर देता, तो चेक करिए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दैट ऑल थिंग वी हैव लर्न। सिमिलरली मान लीजिए मैं लेता हूं फ्लोर ऑफ एक्स। फ्लोर किसको कहेंगे ना, देखकर याद आया कुछ? स्टेप फंक्शन। दिस इज योर Step 5 function. यस, बिल्कुल सही। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन SIGN हो गया। सो शॉर्टकट वो चलो जो भी सब चीजें बताई हुई हैं, तो बेसिक फंक्शंस का आइडिया लग गया। तो मान लीजिए मुझे बात करनी थी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो आई डोंट नो SQRT ऑफ एक्स अगर मैं ले लूं, SQRT आ गया सीधा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो एक बेसिक सिंटेक्स स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अगर लगे, अदरवाइज SQRT और x लिख दिया, फिर बीच में मान लो x+2 लिखा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पूरे के बाहर में +2 लिख देता, तब क्या इंपैक्ट होता? तो यू कैन प्ले विद द ग्राफ, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लोर करें अपने आप इस ग्राफ के सॉफ्टवेयर को, एंड इमेजिन एनी ग्राफ। अब आप बताइए कोई एक दो ग्राफ coming to your mind, any graph? कोई भी ग्राफ नहीं आ रहा माइंड में? Greatest integer function graph. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अभी हमने करा ना, क्या था उसका सिंटेक्स, क्या वो देखा था हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने ये किया था फ्लोर फंक्शन, ठीक है? तो फ्लोर अपॉन वाला फंक्शन जो होता है, विच वन? रेसिप्रोकल शायद। वो रहा, ये रहा रेसिप्रोकल फंक्शन, ये रहा 1/x, ठीक है? तो सिंपल मैं कीबोर्ड के ऊपर अपने लैपटॉप पे 1 डिवाइड बाय वो बस प्रेस कर रहा हूं, यू कैन इजीली गेट दी ग्राफ्स। इवन बाद में हम स्टडी करेंगे अबाउट द log x, तो ये log का ग्राफ का फंक्शन है। इसी तरह से हम बात करते हैं से a⁴x का फंक्शन। इसके लिए चलो मैंने ये स्लाइडर बना दिया, यस, चेक इट आउट। a⁴x का ग्राफ ये रहा, नोट द चेंज। सो a की वैल्यू बदल रही है, ग्राफ किस तरह से अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो वो सब चीजें कैन बी एक्सप्लोर्ड यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। यहां तक अपना ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट रखिए, लर्न द बेसिक शेप्स एंड एक्सप्लोर द सॉफ्टवेयर। Excuse me, sir. यस, सर एक बार जहाँ पर आपने रेंज लिखी थी 6 सेकंड एक्स की, एक बार वहाँ जाना, वहाँ पर कुछ डाउट था मेरे को। ये रही सर यहाँ पर आपने लिखा है डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस 1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। सर इसके अंदर -1 की वैल्यू तो ले रहे हैं ना, -1 और 1? -1 सेकेंड, Yes, यस यस, ये ले रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअल में ओपन ब्रैकेट आना था, ओपन आएगा, वो किसी ने बोला तो मैंने भी जल्दी में फिर लिख दिया, चलो दैट्स गुड। आप चेक करिए, द ओनली करेक्शन वुड बी हेयर, यहाँ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट के ऊपर मेरी वैल्यू डिफाइन हो रही थी, राइट। बाकी सभी फंक्शंस की ये डोमेन रेंज एनसीईआरटी में प्रॉपर वे में बताई हुई है, वो वहां से आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द मीटिंग।
Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Yes, you can leave the meeting now.